Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Mantra. Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444 or 2342-1050 and 2331-0464. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं और आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक राजीव रंजन। राजीव जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम। जी नमस्कार, धन्यवाद। श्रोताओं, आज सोमवार है और आज के दिन हमारे इस कार्यक्रम में आप सीधे हुआ करते हैं शामिल। हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, शेयर बाजार या कारोबार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी शेयर या कंपनी के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए डायल कीजिए 2331-4444, 2342-1050 या फिर 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोताओं को इन नंबरों से पहले 011 भी लगाना चाहिए। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं निहारिका भुवानिया। Well, let's take a look at the headlines first. Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Sonmarg Tunnel in Jammu and Kashmir, project to boost tourism and all-weather connectivity in the region. Retail inflation rate eases to 4-month low of 5.22% in December 2024, and benchmark domestic indices end lower amid sell-off across all sectors. Sensex tumbles over 1,000 points, Nifty closes below 23,100. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन और हर मौसम में संपर्क सुविधा को बढ़ावा मिलेगा। देश में दिसंबर 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति की दर घटकर 4 महीने के न्यूनतम स्तर 5.22% पर आई और घरेलू शेयर बाजार में हुई चौतरफा बिकवाली। प्रमुख सूचकांक घाटे के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी फिसलकर 23,100 के नीचे हुआ बंद। Well, Prime Minister Narendra Modi today inaugurated the prestigious Sonmarg Tunnel in Gandarbal district of Jammu and Kashmir. The project has been constructed at a cost of over 2,700 crore rupees. This tunnel will provide all-weather connectivity between Srinagar Valley and Ladakh, promoting tourism and giving boost to defense logistics in the region. After inaugurating the project, the Prime Minister went inside the tunnel and interacted with the project officials. He also met construction workers who worked meticulously amid harsh conditions to construct the tunnel. Addressing the gathering on the occasion, the Prime Minister emphasized the extensive infrastructure development from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. He said Jammu and Kashmir is becoming a hub of tunnels, high bridges and ropeways. Mr. Modi said, some of the world's highest tunnels and railroad bridges are being constructed in the Union Territory. The Prime Minister asserted that work is in progress on road connectivity projects worth more than 42,000 crore rupees, underlining the significant contribution of the tourism sector to India's journey towards becoming a developed nation. The Prime Minister remarked that improved connectivity will allow tourists to reach previously untouched and unexplored areas of Jammu and Kashmir. हमारे साथ कई श्रोता इस बीच फोन लाइन पर आ चुके हैं। हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे दिल्ली से एसके सिंघल को। सिंघल साहब, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। आप अपनी नमस्कार राजीव साहब। आप एक काम करें सिंघल जी, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। नमस्ते सिंघल जी, एक आग्रह, अपने रेडियो सेट की आवाज बिल्कुल धीमी कर लीजिए। बहुत राजीव साहब, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे फ्रेंड ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ शेयर्स वगैरह में, तो रेट काफी गिर गए हैं, तो वो इसमें बने रहे या
उसमें एग्जिट कर जाए लॉस बुक करके। जी सिंघल जी, आप अपने जो मित्र हैं उन्हें आप यही कह सकते हैं कि सबसे पहले तो उन्हें अपने शेयरों की रिव्यू करनी चाहिए कि उनके शेयर अच्छे हैं, बुरे हैं, कमजोर हैं, मजबूत हैं। ये कोई एक जेनरिक एडवाइस हर शेयर के लिए नहीं दी जा सकती है कि वो अभी बाजार से पूरे निकल जाएं या पूरी तरह से इन्वेस्टेड रहें। ये समय ऐसा है जब उन्हें कमजोर शेयरों की पहचान करके वहां से निकलना चाहिए, लेकिन अच्छे शेयरों में बने रहना चाहिए। Right, and with that, we've also been joined by our next caller, RP Singh, who calls from Delhi. Good evening, Mr. Singh. Please ask your question. हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्ते। हेलो। हाँ सर, मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ एक। मेरी आवाज आ पा रही है आपके पास? जी हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है, सुंदर है। सवाल हाँ जी सर, मेरे पास 50 लाख रुपए की व्यवस्था है और मैं शेयर मार्केट से बिल्कुल अनजान हूँ। मैं मुझे सही रास्ता बताइए कि अगर मैं इसको इन्वेस्ट करूं शेयर मार्केट में तो मुझे कितना लाभ हो सकता है, मासिक या वार्षिक? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, सही गाइड करें मुझे आप। आरपी सिंह जी, थोड़ा सा आप और विस्तार से बताइए अपने बारे में कि आप काम कर रहे हैं, रिटायर्ड हैं? हम एक औसत सी अपने अंदाजे से यानी कह लें कि इन सवालों का ये कर लें और 50 लाख रुपए का निवेश करना चाहते हैं तो एक सामान्य यानी जनरलाइज कर दें स्पेसिफिक की बजाय कि एक आम जन यदि निवेश करना चाहे तो उसे क्या सलाह देना चाहेंगे? मनोज जी, ये काफी पर्सन स्पेसिफिक गाइडेंस हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा और उनके बारे में समझना चाहा। कोई एक जेनरिक थंब रूल नहीं दिया जा सकता कि आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो आज वो पूरे निवेश कर लेने चाहिए या नहीं कर लेने चाहिए। अब चूंकि उनके डिटेल नहीं है तो कुछ बेसिक्स हम इस तरह से बता सकते हैं उन्हें कि वो इस 50 लाख रुपए को सबसे पहले तो किसी अल्ट्रा शॉर्ट फंड में, म्यूचुअल फंड में वो डाल दें और उसके बाद वहां से एक एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए वो उसे इंडेक्स फंड्स में, सेंसेक्स और निफ्टी के इंडेक्स फंड्स में ट्रांसफर करना शुरू करें। ये तरीका अगर वो अपनाएंगे, कोई भी जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर होगा अगर वो उससे पूछेंगे कि इस तरीके से काम करने के लिए कहा गया है तो वो उन्हें गाइड कर देंगे। Right. And I think investments are also very personal based on personal goals. So with that, we also move to our next caller. Dilip joins us from Jaipur. Good evening, Dilip. Please ask your question. जी नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार। सवाल पूछें। सवाल बहुत छोटा सा है सर कि जो आज खरीदते हैं वो कल बेचते हैं तो एवरेज हो जाते हैं सर, इसका कोई ट्रीटमेंट है क्या? सेपरेट बेचना चाहते हैं शेयर्स को, तो जो पहले से खरीदे हुए हैं उनमें वो जुड़ जाते हैं और अलग अलग नहीं बिक सकते जी। तो इसके बारे में बताएं सर। देखिए, आप आज खरीदें कल बेचें, उसको बहुत ज्यादा सेपरेट करके आपको क्या फायदा होगा ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हालांकि टैक्सेशन के लिहाज से शायद फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला एक कॉन्सेप्ट आपके मामले में लागू होगा जब आप ये अकाउंटिंग करने बैठेंगे कि आपको कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। लेकिन अल्टीमेटली आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ। फाइनली आपको टैक्सेशन पर्पज से इन दो चीजों पर ध्यान देना होगा और वहां पर आपके लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला फॉर्मूला ही चलेगा, भले ही आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उस समय नजर न आ रहा हो अलग से। आइए चलें कोलकाता। हमारे साथ हैं हमारे पुराने श्रोता अतनु साहा। स्वागत है अतनु। गुड इवनिंग सर, माय क्वेश्चन, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। जी स्वागत। माय क्वेश्चन इज सर, व्हाट इज फूड इन्फ्लेशन and what is tolerance capacity inside our country? And this previous year, financial year, we observed a good rainfall, sir, but it is not reflected. Thank you, sir. Please give your information related. जी मनोज जी, फूड इन्फ्लेशन के बल्कि टोटल जितने भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अलग अलग ब्रेकअप्स हैं वो सारे आज ही आए हैं। तो हाँ, तो मैं समझता हूं कि श्रोताओं आपको हम पहले ये जानकारी दे दें और इशारा कर चुके हैं हमारे विशेषज्ञ राजीव जी, तो हम पहले आपको खाद्य मुद्रास्फीति और जो खुदरा यानी मुद्रास्फीति उत्सवों की जानकारी देते हैं। अच्छी खबर है, देश में खुदरा मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति की दर चालू वित्त वर्ष के दिसंबर महीने में यानी ठीक पिछले महीने घटकर 4 महीनों के न्यूनतम स्तर 5.22%
प्रतिशत पर आ गई। मुद्रास्फीति में ये कमी इस अवधि में खाद्य पदार्थों के मूल्य मुख्य रूप से घटने से आई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर 5.76% और शहरी क्षेत्रों में 4.58% दर्ज की गई। अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक CPFI पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति की दर दिसंबर 2024 में 8.39% रही, जबकि इससे पहले महीने नवंबर में 9.04% और अक्टूबर में 10.9% रही थी। आलोच्य अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति दर 8.65% और शहरी क्षेत्र में 7.9% रही। मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2024 में सब्जियां, दाल और इसके उत्पाद, चीनी और इससे संबंधित उत्पाद तथा अनाज और संबंधित उत्पादों के दामों में कमी आई। इसके अलावा व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव वर्ग में भी मुद्रास्फीति की दर घटी। दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति की दर भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य दायरे में सीमित रही है। केंद्रीय बैंक का लक्ष्य मुद्रास्फीति को 2 से 6% के दायरे में बनाए रखना है, जबकि मध्यम अवधि के लिए ये लक्ष्य मुद्रास्फीति को औसतन 4% के आसपास बनाए रखना है। जी मनोज जी, जैसा आपने सारा विस्तार से बताया ही कि इसमें इस बार जो ताजा आंकड़े हैं उनमें जो महंगाई घटी है उसमें मुख्य योगदान फूड इन्फ्लेशन का ही है, खाद्य महंगाई घटने का ही है। और बाकी चीजों में खासतौर पे कोर इन्फ्लेशन को देखें तो पहले भी वो कोई मतलब चिंता वाली लकीर पे नहीं थे। मुख्य चिंता थी फूड इन्फ्लेशन को लेकर के ही, और अगर वो कम होनी शुरू हुई है तो ये काफी एक पॉजिटिव संकेत है। तनु जी का सवाल था कि इसमें जोड़ा क्या जाता है। आप इसके ब्रेकअप में ही देखें तो सब मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपकी थाली में जो कुछ आता है वो तमाम चीजें इसके अंदर जोड़ी जाती हैं, चाहे वो अनाज हो, सीरियल्स हैं या दालें हैं, पल्सेज हैं या फिर सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, दूध, अंडे, तमाम चीजें जोड़ी जाती हैं। तो आप अपनी थाली देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अब हम चलते हैं शेयर बाजार, जहां चौतरफा बिकवाली रही है। पहले हिंदी में। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख से घरेलू शेयर बाजार आज घाटे के साथ बंद हुए। चौतरफा बिकवाली की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 1049 अंक यानी 1.36% घटकर 76,330 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 345 अंक यानी 1.47% कम होकर 23,086 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की जबरदस्त बिकवाली हुई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों 4.1% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए। And with that, we take a look at the detailed stocks in English now. So benchmark domestic equity indices today ended lower in line with global markets. The 30-share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, tanked 1,049 points or 1.36% to close at 76,330. Similarly, the National Stock Exchange, Nifty 50, shed 345 points or 1.47% to settle at 23,086. The broader market indices at BSE witnessed intense selling pressure. The mid-cap and the small-cap indices both plummeted over 4.1% each. In the Sensex index, 26 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, Zomato tanked over 6.5%. Power Grid and Adani Ports both lost more than 4% each, and Tata Steel dropped almost 3.5%. Meanwhile, among the top gainers, Axis Bank increased over 0.7%, TCS gained over 0.5%, and Hindustan Unilever advanced 0.45%. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors ended in negative territory. In the top laggards, Realty plunged over 6.5%, utilities as well as services both dropped over 4.3% each. Power fell over 4.2%. And the overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,562 companies declined and 555 advanced while 131 remained unchanged. Now at the National Stock Exchange, 22 companies hit their 52-week high while 429 hit their 52-week low. And with that, let's also take a look at the rupee. नजर डालते हैं रुपए पर। तो आज रुपए में अच्छी खासी गिरावट आई है। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 61 पैसे कमजोर होकर 86 रुपए 58 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू बाजार में हुई गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल का मूल्य बढ़ना, अमेरिका में रोजगार संबंधी उम्मीद से बेहतर आंकड़े और ट्रेजरी यील्ड के दाम बढ़ने सहित विभिन्न कारणों से आज रुपए में कमजोरी आई।
उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 110.08 पर चल रहा था। And with that, we also go to Maharashtra to our next caller. KK Shukla is with us on the line. Good evening, sir. Please ask your question. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। Good evening. मेरा क्वेश्चन है कि जो विदेशी कंपनियां हैं इंडिया में, जैसे यूएसए का, ब्रिटेन का या अदर कंट्री का, तो उनका ये जो आने वाला है फरवरी महीने में बजट, उनका भी कुछ सपोर्ट रहता है या कुछ उसमें योगदान रहता है कि इंडियन जो कंपनी है उन्हीं का रहता है? और सेकंड, लगता है हमारा संपर्क टूट गया। शुक्ला जी को बजट के बारे में समझना था। देखिए शुक्ला जी, योगदान तो उसमें आपका भी रहता है मुख्य रूप से। देश के जितने भी लोग हैं, जो भी कुछ कमाते हैं, कुछ बचाते हैं, कुछ काम करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सबका योगदान होता है। और उसमें देशी कंपनियां भी हैं, विदेशी कंपनियां भी हैं, लेकिन बजट बनाने में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का योगदान होता है। बजट भारत सरकार के खर्चे और आमदनी का एक हिसाब किताब है, तो उसमें यह भी जरूर होता है, सरकार की नीतियां सामने आती हैं कि देश के विकास को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। एक अच्छा खासा हमारी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए और उसे गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आइए चलें नोएडा से हमारे साथ हैं पंकज मिश्रा। पंकज जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं पंकज, सवाल पूछिए। आपकी पूरी टीम को सर नववर्ष की और शरद पूर्णिमा और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। आभार, आपको भी बहुत बहुत सर हमारा क्वेश्चन ये है सर कि किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले इसकी बेसिक जानकारी क्या है सर, ये जानना चाहते हैं सर। जी पंकज जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। और हर निवेशक को कोई भी शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह जानकारी जुटानी चाहिए। मुख्य बातें जो आप जिन्हें मैं कहूं हेडलाइन नंबर्स, जिन पर आपको सबसे पहले नजर डालनी चाहिए, वो ये है कि कंपनी की सेल्स किस तरह से बढ़ रही है और कंपनी का मुनाफा, प्रॉफिट किस तरह से बढ़ रहा है। उसके आगे आप जैसे जैसे डिटेल्स में स्टडी करते जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, उसको समझने के कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनके बारे में आप जानकारी जुटाइए। वैल्यूएशन को समझिए, वैल्यूएशन सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी शेयर को खरीदने बेचने के लिए। और साथ में बहुत सारे रिटर्न रेशियोज आके जाते हैं, जिससे कंपनी कैसा काम कर रही है ये सब देखा जाता है। लेकिन अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, सबसे पहले आप देखिए कंपनी की बिक्री कितनी बढ़ रही है, हर तिमाही में कितनी बढ़ रही है और उसका मुनाफा कितना बढ़ रहा है। Well, I hope that answers your question and that gives you an overall of how to evaluate company shares. And with that, I feel now let's hear it from our caller from Bangalore. NR Prasad has joined us on call. Good evening. Please ask your question. Hi, good evening, Market Mantra. This is NR Prasad from Bangalore. Mr. Ranjan, there are two questions. The first question, any specific reason why Sensex fell down over 1,000 points today? And my second question is, see, the manufacturing sector has shown a significant growth in Q2 and Q3. But even then, the market continues to fall. In case if auto sector or any other sectors which is under manufacturing is really doing well, why market continues to fall? Any significant reason? And with that, I'm also adding another small question. Is this the right time to buy the auto sector, keeping it for next 6 months? बहुत धन्यवाद प्रसाद साहब। प्रसाद जी ने कई सारे सवाल इकट्ठा पूछे हैं। आज क्यों बाजार गिरा है? अब देखिए, ये तो मतलब पोस्टमार्टम वाली बात हो गई। बहुत सारे कारण, मतलब एक घटना हो जाने के बाद आज ही 1000 पॉइंट बढ़ भी जाता तो भी यही पूछा जाता। देखिए, कुछ समय से बाजार का मूड ठीक नहीं है। मूड ठीक नहीं होने के पीछे कई सारी चीजें होती हैं, और मुझे तो ये लगता है कि मूड ठीक नहीं होने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जब भी आप ज्यादा खा लेते हैं उसके बाद आपको सुस्ती आ जाती है। सही बात। तो बाजार ने पिछले 3-4 साल में बहुत खा लिया है, तो अभी एक सुस्ती आ गई है।
जब वो सुस्ती ठीक हो जाएगी तो आपको बुरी से बुरी खबर भी अच्छी लगने लगेगी, और इस समय आपको अच्छी से अच्छी खबर भी ठीक नहीं लग रही है। इस समय बाजार का बस मूड ठीक नहीं है। ऑटो सेक्टर के लिए चिंतित दिख रहे थे, ऑटो सेक्टर का क्या कैसा प्रदर्शन रह सकता है? देखिए, कुल मिलाकर के पूरी कंजम्पशन थ्योरी, ऑटो भी उसका एक पार्ट है। जी जी। कंजम्पशन थ्योरी जो है या कंजम्पशन थीम जो है, उसमें हमें पिछली तिमाही के नतीजों में थोड़ी सी एक निराशा देखने को मिली। उसके चलते बाजार को थोड़ा सा लग रहा है कि क्या हमारे ग्रोथ पे कुछ सवाल आ रहे हैं वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि इस बार जो तिमाही नतीजे अभी रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है, जी, जी। इसमें जब आगे हमें लगातार कंपनियों के नतीजे सामने मिलेंगे और उसके बाद लोगों का एक व्यू बनेगा कि हाँ, पिछली 2 तिमाहियों में जो एक थोड़ा सा धीमापन आया है वो कितना आगे जाने वाला है। अगर ये तिमाही नतीजे जैसा उम्मीद करते हैं कि उस ट्रेंड को पलटेंगे, अगर वो ट्रेंड पलटने का एक रुझान हमें दिख गया कि नहीं, कंजम्पशन वापस लौट रही है, तब तो बाजार का मूड ठीक हो जाएगा और फिर ऑटो का भी ठीक हो जाएगा। आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, and I think that was a wonderful analogy, and because we've gone on that tangent, so let's now also talk about renewable energy growth. India's total renewable energy installed capacity has reached over 209 gigawatts in December 2024, marking a growth of 15.84% increase compared to over 180 gigawatt in December 2023. The Union Ministry of New and Renewable Energy said that this growth reflects India's steadfast commitment to achieving its clean energy targets and its broader vision under the Panchamrit goals announced by Prime Minister Narendra Modi. According to the data, as of December 2024, the total capacity added during 2024 amounted to 28.64 gigawatts, representing a significant increase of 119.46% on annual basis compared to the 13.05 gigawatts added in 2023. In 2024, solar power spearheaded this growth with the addition of 24.54 gigawatts, reflecting a 33.47% rise in its cumulative installed capacity to 97.86 gigawatts in 2024. Wind energy also contributed to this expansion with an additional 3.42 gigawatts installed in 2024, increasing the total wind capacity to 48.16 gigawatts, a growth of 7.64% from 2023. यहाँ पर एक यानी कह लें कि आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। लगभग 16% की वृद्धि हुई है पिछले 1 वर्ष में। किस तरह लेना चाहिए इन आंकड़ों को? जी, आप इन टर्म्स ऑफ ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी संदर्भ में समझना चाह रहे हैं? इसी खबर के संदर्भ में। जी, देखिए, सरकार ने काफी ज्यादा फोकस इस बात पे रखा है कि जो हमारी एडिशनल कैपेसिटी बढ़ रही है पूरे एनर्जी बास्केट में, उसमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल रिन्यूएबल का हो, और इस पॉलिसी इंसेंटिव का या इस पॉलिसी थ्रस्ट का एक सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। और आज हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली सोलर इंडस्ट्री में भारत काफी ज्यादा वर्ल्ड स्केल के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर रहा है। जी जी, जिसमें आपको काफी बड़े स्केल के प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, और उसका एक हमें फायदा इस संदर्भ में भी दिख रहा है कि जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट थी सोलर की या बाकी भी दूसरे जो रिन्यूएबल मीन्स थे उन सब में, वो काफी हमें पर यूनिट कॉस्ट घटती हुई दिखी है, जिसके चलते जो प्रोजेक्ट पहले वायबल नहीं लगते थे वो वायबल होने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों में ये गति काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और भी जी, आगे बढ़ें, खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, and well, talking about world news, so in UAE, the highly anticipated Steel Fab Expo 2025 began today at the Expo Center, Sharjah, featuring the largest ever Indian participation with over 35 companies under the Confederation of Indian Industry, India Pavilion. Now, this milestone highlights India's growing prominence in the global metalworking and fabrication sectors and strengthens its industrial ties with the UAE and West Asia. So, Rajiv, would you like to talk to us about in this respect as well? How is it going to impact the Indian markets, and overall, what does it mean for the economy as a whole? Regarding crude? Well, India's growing prominence in global metalworking and fabrication sectors. I'm not updated on that.
राइट, आई थिंक वी कैन गो अहेड। आगे आइए, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं हम वैश्विक शेयर बाजार की ओर। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार, जहां आज बिकवाली तेज रही है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हेंग सेंग दोनों आज 1% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए। उधर सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.26% की कमी आई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.25% नुकसान के साथ बंद हुआ। उधर जापान में शेयर बाजार सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद रहे। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चले तो समाचार तैयार की जाने तक वहां भी बिकवाली दिख रही थी। फ्रांस का कैक 40 0.9% नुकसान के साथ था। जर्मनी के डेक्स में 0.8% की कमी थी। लंदन का FTSE 100 भी 0.4% घाटे के साथ कारोबार कर रहा था। और इस बीच दिल्ली से हमारे साथ हैं रंजन कुमार। रंजन जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। रंजन जी, आप हमारे साथ लाइन पर हैं, लगता है हमारा हमारा समझ। हाँ, सवाल पूछे रंजन, आप जुड़ चुके हैं हमसे, सवाल पूछे। हाँ, मेरा सवाल ये था कि जैसे कुछ समय पहले इन्होंने बताया, हमारे मार्केट एक्सपर्ट ने, कि अभी मंदी का दौर शुरू हुआ है। पहले हमारे बहुत ज्यादा मैंने अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था और अभी मंदी का दौर है। अभी एक्चुअली जैसे मैंने मैक्सिमम इन्वेस्ट किया है मार्च 2024 में, और अभी जाकर के क्या है, हमारी मार्केट गिरने के कारण हमारी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा गिर गई है। तो मैं बस यही जानना चाहूंगा कि क्या ये राइट टाइम है अपने जो शेयर वैल्यू को बैलेंस करने का? क्या मैं कुछ परचेज कर सकता हूँ इस टाइम में, क्योंकि अभी शेयर के दाम गिरे हुए हैं? तो क्या मैं अभी परचेज कर सकता हूँ जिससे कि मैं अपने रेट ऑफ एनएवी को बैलेंस कर सकूं? थैंक यू जी। रंजन जी, अगर आप एनएवी की बात कर रहे हैं तो शायद आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से इन्वेस्टेड हैं, तो वहां पर आपको पहले से ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। आप डेफिनेटली वहां पे कुछ अच्छे फंड सेलेक्ट करके वहां पे आप नया पैसा और ज्यादा डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी बेहतर ये होगा कि आप एसआईपी रूट इस्तेमाल कीजिए, वो ज्यादा एक बेहतरीन तरीका है जिसमें आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती रहती है। आप इस कॉन्सेप्ट को गूगल कीजिए, आपको उससे समझने में आसानी होगी। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स भी अगर आप वहां पे पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए मार्केट एक ठीक ठाक करेक्शन दे चुका है अपने टॉप से। तो आप अगर अच्छे शेयर, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर चुनेंगे, खास करके ये देखते हुए कि उनके वैल्यूएशन जो है, वैल्यूएशन पैरामीटर्स आप उन पे निगाह डालिए। अगर वैल्यूएशन अच्छा है तो आप ऐसी कंपनियों में पैसा लगाएं और उसे 2-3 साल का समय कम से कम दें। And with that, well, today the focus seems to be on energy. So with regards to that, the India Energy Week 2025 will be held at Yashobhoomi in New Delhi from 11th of February this year. The 4-day event will provide a global platform to bring together the best and the brightest of the energy ecosystem. Addressing a press conference in New Delhi today, Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Pankaj Jain said, more than 700 exhibitors will showcase cutting-edge technologies and explore opportunities to shape the future of energy. He added that 20 foreign ministers and around 90 CEOs of companies will also attend the event. Mr. Jain said, India Energy Week will bring together industry leaders, policymakers, researchers and innovators of India and abroad. आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं तेल के भावों पर। So oil prices continued their upward trajectory today after the US President Joe Biden's administration announced last Friday about the imposition of fresh sanctions against Russia's critically important energy sector over its war in Ukraine. Brent crude was trading at $81.12 per barrel, soaring over 1.7%. WTI crude also surged 2% to trade at around $78.11 per barrel, according to the latest reports. तेल के बाद चौतरफा बिकवाली का दौर सोने चांदी पर भी देखने को मिला। आज सर्राफा बाजार में सोने चांदी की चमक फीकी रही। सर्राफा बाजार में सोना आज घटकर कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक 24 कैरेट सोने का मूल्य 78,320 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 1.86% नीचे आई, 90,560 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी। एमसीएक्स में भी सोना 0.13% कम चल रहा था। कुल मिलाकर चांदी में भी यही स्थिति थी। मार्च में आपूर्ति वाली चांदी 1.93% घटकर 90,720 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से राजीव जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जी, बहुत धन्यवाद।
Thank you so much for joining us today, Rajiv. And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Sonmarg Tunnel in Jammu and Kashmir, project to boost tourism and all-weather connectivity in the region. Retail inflation rate eases to 4-month low of 5.22% in December 2024. And benchmark domestic indices end lower amid sell-off across all sectors. Sensex tumbles over 1,000 points. Nifty closes below 23,100. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.